Very good morning, class ninth. This is my next video, session 2, basics of computer system and a mobile device. So dear student, I am going to teach you the few basic concept of computer today. That is what is computer, what is hardware, software, data, information. Yes, I know कि आपको मालूम है, but फिर भी let's revise the concept first. So as you all know that we all are what aware with the computer, है ना? And we already knowing the definition of computer. So you will tell me what is the definition of computer. If I ask you, then everybody says a computer is electronic machine or a device. क्या इतना ही कहना काफ़ी होगा? A computer is electronic device. Is this sufficient, or is this the definition of computer? The answer is no, because we have seen the loads of electronic devices. Like here here nowadays we are using TV, AC, refrigerator, and washing machine, lots of things. These all are also electronic devices. पर क्या टीवी कंप्यूटर है? क्या एसी कंप्यूटर है? The answer is no. Fan is also electronic device, but fan is not a computer. So how we can differentiate in between other electronic devices and computer? So for that you have to speak the few basic property, or I can say few basic characteristics of computer. So what will be the perfect definition of computer is, क्या होगा? A computer is an electronic device that can perform a variety of operation according to the set of instructions that is called a program. That is the complete definition of computer. A computer is basically electronic device which can perform the lots of operation, है ना? Which type of operation it can perform? It can perform arithmetic operation, it can perform logical operation, it can store data, है ना? But how it will perform, कैसे perform करेगा? According to the set of instruction, the instruction which are given by us. जो हम instruction देंगे उसी के थ्रू ही या उसी से ही क्या करेगा, जो हमारा टास्क है उसको परफॉर्म करेगा. कौन? कंप्यूटर. और इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हम लोग देते हैं. जैसे ये कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कौन देंगे? ये देंगे, हम लोग देंगे. ये कौन है? यूज़र है. ठीक है. तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर क्या करता है? परफॉर्म करते जाता है. ठीक है. इट परफॉर्म द लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस और वेराइटीज ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय अस, और वी कैन सी बाय द प्रोग्रामर और बाय द यूज़र. ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन है बेटा. बिल्कुल डेफिनेशन को तो आपको रट्टम रट्टा याद होना चाहिए, और याद करने का ज़रूरत ही नहीं है भाई. इसमें याद क्या करना है? जो चीज़ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उसी को तो बोलना है. ओके ओके. नाउ इफ़ यू see the definition, that is a computer is an electronic device which can perform the varieties of operation according to the set of instruction is called a program. अगर बोले आपको प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो आप क्या बोलोगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं. सेट ऑफ मतलब मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस. बहुत सारे ग्रुप होते हैं इंस्ट्रक्शंस का, तब जाके क्या बनता है? आपका प्रोग्राम बनता है. और इंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं भाई? इंस्ट्रक्शन मतलब हम जो कमांड देते हैं, जो इनपुट देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है, समझ. और बहुत सारे जब इन इंस्ट्रक्शंस को मिलाते हैं तब जाके क्या बनता है? हमारा प्रोग्राम बनता है. ओके ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर? एज यू ऑल आर नोइंग, देयर आर टू थिंग्स, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. अब बहुत लोग को पूछो तो क्या बोलते हैं? हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको नहीं छू सकते. क्लास 2 का बच्चा भी यही आंसर देता है ना? यू आर इन 9th और आप भी यही आंसर दे रहे हो, और क्लास 2 का बच्चा भी यही आंसर दे रहा है. तो क्या ये है सही? क्या ये जस्टिफाइड है आंसर के लिए? नहीं ना भाई. आपको कुछ नया बताना पड़ेगा. आप 9th में हो तो आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. तो व्हाट विल यू से, है ना? इफ़ समवन आस्क यू अबाउट दी hardware and the software, then you will say a hardware is the physical component of a computer. What does physical component means? A hardware is the physical component of computer that we can touch, we can see, we can repair, we can replace. These all are the hardware. And what is the software? As you all know that set of programs is what? Software.
बहुत सारे प्रोग्राम को बनाएंगे तो बनेगा सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को बनाओगे तो क्या बनेगा, प्रोग्राम। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होगे क्या, बहुत सारे अल्फ़ाबेट को मिलाओ तो क्या बनता है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट को मिलाओ तो बनता है वर्ड, बहुत सारे वर्ड को मिलाओ तो बनता है सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस को मिलाओ या लाइंस को मिलाओ तो बनता है पैराग्राफ। सो सेम वही है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलाओ तो बनेगा प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाओगे तो बनेगा सॉफ्टवेयर। सो अ सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम, है ना। वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, वी कैन नॉट सी द सॉफ्टवेयर, सॉरी वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, बेसिकली सी तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं। वी कैन नॉट रिपेयर द सॉफ्टवेयर, वी कैन री इंस्टॉल और वी कैन अपडेट द सॉफ्टवेयर, है ना। हम इसको रिपेयरिंग के लिए नहीं भेजते, बाहर नहीं निकालते कंप्यूटर से। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स ये होते हैं, और हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम छूते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी। और इसको क्या करते हैं, रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं, रिपेयर होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी है। सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स आप पढ़े हैं क्लास 8th या 7th में, दैट इज़ द बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड इज थर्ड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी में आपका आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट जैसे वर्ड प्रोसेसर है, MS एक्सेल है, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड इफ़ यू हैव फॉरगट all the concepts, then please it's my request, once go once you just see the book of your 8th or 7th, है ना, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन सी योर कंप्यूटर बुक ऑफ 7th and 8th, or you can search on YouTube. So what is the application software, what are the system software, what are the utility software, इन तीनों के बारे में आप सर्च करेंगे, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता रहना चाहिए आपको, बताओगे ना नेक्स्ट क्लास में, ये होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, लिख के भी भेज सकते हो और बताना है। लिखने लिखने को मैं उतना प्रायोरिटी नहीं देती, अगर आप समझा पाओगे अपनी बातों को तो आप काफ़ी आगे जाओगे। मैं लिख के क्या, मैं तो लिख के 100 में आपका 99 मार्क्स ला सकती हूँ, देख देख के लिखना है या जैसे भी लिखना है लर्न करके लिखो। लेकिन आप 99 मार्क्स लाए हो एंड यू आर नॉट बी एबल टू आंसर द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, देन देर इज़ ए नो यूज़ ऑफ दिस मार्क। आप 98 नंबर ला लो 100 में, और अगर मैं बोलूँ बेटा आपका क्या नाम है, आप अपना नाम ही नहीं बता पा रहे हो, कोई यूज़ है ऐसे नंबर का? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करती ऐसे नंबर लाने से। इसलिए आप नंबर कितना भी लाओ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई कॉन्टेक्स्ट, है ना। मेरे हिसाब से आपको नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इट्स योर होमवर्क कि आप क्या करो, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पता करो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पता करो, है ना। मैं आपका काम आसान कर दी हूँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बता के, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता करो, है ना। आई विल आस्क these 3 things in the next class, okay, these 3 topics I'll ask in the next class, okay. नाउ नेक्स्ट वन इज़ डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये डाटा होता है जिसको हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, डालते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और फिर क्या होता है, आउटपुट जनरेट होता है, और इस आउटपुट को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डाटा इज़ अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल या अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है, जो प्रोसेस नहीं हुआ रहता है उसको बोलते हैं डाटा। ठीक, और प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग वॉट एवर वी गेट, है ना, क्या मिलते हैं, प्रोसेसिंग के बाद हमको रिजल्ट मिलते हैं ना, तो जो रिजल्ट है वो क्या है आपका, इंफॉर्मेशन। और वी कैन से प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डाटा इज व्हाट, इंफॉर्मेशन। और डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा मीनिंगफुल होता है, क्या होता है, मीनिंगफुल, है ना, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग रहता है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट, मीनिंगफुल डाटा को भी हम इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन डिफाइन द things, or we can say you can define the particular word or the topic
ठीक है, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, पर आप डिफाइन करना सीखो तो सही, गलत बोलो सही बोलो वो अलग बात है। तो डाटा समझ में आया। अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बोलो, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स बोलो, अनप्रोसेस्ड रॉ फिगर बोलो, ये सभी क्या हैं? डाटा हैं। क्या है बेटा? डाटा। ठीक। अब अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स फिगर में क्या आते हैं? आप टेक्स्ट की बात कर लो, टेक्स्ट मतलब यही अल्फ़ाबेट, जैसे ये लिखे हो इनपुट ये। इमेज की बात कर लो, इमेज मतलब फ़ोटोज़ पिक्चर्स ग्राफिक्स। आप ऑडियो की बात कर लो, है ना, ऑडियो मतलब वॉइस बोलो। और वीडियो की बात करो, वीडियो मतलब विजुअल, जो हम देखते हैं जिसको बेसिकली। तो ये सभी क्या है? डाटा। डाटा कैन बी एनीथिंग, नंबर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ एक प्रकार का डाटा ही है ना। टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी नंबर हो, ये सभी क्या हैं? डाटा ही हैं। ठीक। और वो जब कंप्यूटर में जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं, या प्रोसेस्ड डाटा बोलते हैं, या मीनिंगफुल डाटा बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आया? बहुत इजी टॉपिक है और आपको पता भी है ये। ओके। ओके। सो इन दी नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दी व्हाट? फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। चलो मैं बता ही देती हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या बताना। देखो, फंक्शनिंग में भी बताइए, इनपुट आउटपुट और क्या प्रोसेसिंग। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मेन फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ये तीन चीज़ समझ गए तो समझ गए। क्या समझे? ये कंप्यूटर है, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, यहाँ से प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेसिंग चलने के बाद देखो, इनपुट जब दोगे तो कुछ चीज़ स्टोर भी करना पड़ता है, तो ये क्या करता है? स्टोर करके भी रखता है। प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, फिर क्या होता है? आउटपुट जनरेट होता है। इनपुट किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आउटपुट किससे जनरेट होता है? आउटपुट डिवाइस के थ्रू। प्रोसेसिंग किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड सीपीयू ओनली। ठीक है, हमारे पेटू में भी ऐसा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डायग्राम बनाए होगे। मेरा डायग्राम तो खैर वैसे भी हिला डुला है, आपको पता ही है, पहले से बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से क्या होता है? ऐसे आता है ना, फिर ऐसे टमी में जाता है, ऐसे ऐसे करके आप पढ़े होगे साइंस में। और फिर यहाँ से आउटपुट जनरेट होता है, हम यहाँ से खाते हैं। ठीक, कोई भी सामान खा रहे हैं, एप्पल वेप्पल, ये यहाँ पे आ रहा है, फिर पेट में ऐसे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ से फिर आउटपुट जनरेट हो रहा है। और कुछ कुछ आउटपुट जो हमारी बॉडी में भी सीक्रेट होता है, जैसे एनर्जी मिलती है हमको। तो ये जैसे हमारा काम है भाई, हम लोग हैं, इंसान लोग हैं, सेम वैसे कंप्यूटर भी काम करता है ना। अब ये मशीन है तो इसकी फंक्शनिंग हल्की सी डिफरेंस होती है हमारे से। ठीक है, सो विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बहुत छोटा वीडियो में डालती हूँ ताकि आप बोर ना हो। बट प्लीज़ 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 करके वीडियो को देखोगे, है ना। वीडियो नहीं समझ आया तो यू लास्ट में इन द नेक्स्ट क्लास। अगर फिर समझ नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। पर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, कि आपको समझ में आनी चाहिए। ओके। ओके, देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।